السلام علیکم، علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر۔ بلیٹن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے لیے مشکلات کے حل کا دروازہ کھول دے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ ڈسکا کے موزہ چک گلا میں بیوی کا موٹا ہونا جرم بن گیا۔ خاوند نے بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے شک کی بنا پر گرفتار کر کے تفتیش کی تو سفاک ملزم نے سب کچھ اگل دیا۔ ڈسکا کے تھانہ موترا کی حدود میں افسوسناک اور انتہائی شرمناک واقعہ پیش آیا، جہاں بیوی کا موٹا ہونا جرم بن گیا۔ ڈسکا کے علاقہ چک گلا میں خاتون کا قاتل اس کا ہی شوہر نکلا۔ 2 روز قبل خاتون نائرہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے شک کی بنا پر شوہر خاور سے تفتیش کی تو اعتراف جرم کر لیا۔ بڑی چیز پلان کرتے ہیں کہ میری جڑی وائف ہے انہوں قتل کریے، میری جڑی وائف ہے وہ تھوڑا موٹا پیجے ہی۔ پولیس نے ملزم خاور کو گرفتار کر لیا ہے۔ مقتول نائرہ کے خاوند خاور نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ نائرہ موٹی ہو چکی تھی۔ سفاک ملزم نے موقع ملتے ہی اپنی بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ نوید اقبال، سچ نیوز، ڈسکا۔ فصلوں پر مویشی کیوں چھوڑے؟ معمولی بات پر سندھ کے شہر ٹھل میں 2 گروپوں میں تصادم ہو گیا۔ 3 خواتین سمیت 11 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ سندھ کے شہر ٹھل میں تھانہ کریم بخش کھوسو کی حدود میں گولا اور کھوسو قبیلے کے 2 گروپوں میں تصادم شدت اختیار کر گیا۔ لاٹھیوں اور کلہاڑیوں کا آزادانہ استعمال ہوا، جس کے نتیجے میں 3 خواتین سمیت 11 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 3 افراد کی حالت تشویشناک ہے، جن کو لاڑکانہ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ جھگڑا زرعی زمین کی فصل میں جانور چھوڑنے کی بات پر ہوا۔ تمام زخمیوں کو سول ہاسپٹل ٹھل منتقل کر دیا گیا۔ جہلم میں مرغی کی دکان پر چھریاں چل گئیں۔ چکن سرکاری نرخوں سے زائد بیچنے والا چکن فروش بپھر گیا۔ شہری نے چکن فروش کو مہنگے داموں مرغی بیچنے سے روکا تو چھریاں چلا دی۔ چھریوں کے وار سے 2 بھائی زخمی ہو گئے۔ مرغی مہنگی کیوں بیچی؟ مرغی فروش سے سوال کرنا شہری کو مہنگا پڑ گیا۔ جہلم میں مرغی کی دکان پر چھریاں چل گئیں۔ شہری نے مرغی کی دکان کے مالک سے زائد نرخ وصول کرنے کی وجہ معلوم کرنا چاہی تو چکن فروش آپے سے باہر ہو گیا۔ چھریوں کے پے در پہ وار کر کے دکان پر آئے 2 بھائیوں کو زخمی کر دیا۔ لڑائی کے بعد چکن شاپ کا مالک فرار ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ تیز رفتاری کا خوفناک انجام، مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب مختلف علاقوں میں معمولی بات پر تنازعات خونی تصادم کی شکل اختیار کر گئے۔ چنیوٹ میں تیز رفتار کار اور موٹر سائیکل میں تصادم ہو گیا، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی ہوا۔ اور کاڑا میں ایک شخص ریلوے ٹریک پار کرتا ہوا ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ٹیمز نے لاش کو ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ شیخوپورہ میں بھوٹن پورہ روڈ میں تیز رفتار موٹر سائیکل نہر کے پل سے ٹکرا گئی، جس سے موٹر سائیکل سوار نہر میں گر کر ڈوب گیا۔ ریسکیو ٹیم نے لاش کو نہر سے نکال لیا۔ میاں والی میں 2 موٹر سائیکلز میں تصادم کے نتیجے میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ چوک سرور شہید میں ملتان روڈ پر موٹر سائیکل سواروں نے شہری پر فائرنگ کر دی۔ زخمی شہری کو تشویشناک حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ٹھل حمزہ میں تھانہ شیدانی کی حدود میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم ہو گیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ زرعی شعبہ اس وقت ایک بحرانی کیفیت کا شکار ہے، مگر افسوس کہ نہ تو پچھلی حکومتوں نے زراعت کے شعبے کی بہتری کی طرف کوئی توجہ دی اور نہ ہی موجودہ حکومت سنجیدگی سے اس معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ عبد المجید رپورٹ کریں گے کبیر والا سے۔ وہ کسان جو زمین کا سینہ چیر کر فصلیں اگاتے ہیں، جن کے دم خم سے کھیت لہلہاتے ہیں، جو فصلوں کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتے ہیں، سردیوں کی یخ بستہ راتیں ہوں یا گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ، ہر طرح کے موسموں کا مقابلہ کرتے ہوئے چند خواہشات کو بھی اپنی آنکھوں میں سجاتے ہیں۔ جیسے جیسے کسان کی فصل بڑھتی ہے اور کھیت لہلہاتے ہیں، ویسے ان کے سپنے اور خواب بھی پروان چڑھتے ہیں۔ کسی نے بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے تو کسی نے ماں باپ کا علاج کروانا ہوتا ہے، کسی نے اپنے بچوں کی فیس ادا کرنا ہوتی ہے تو کوئی اپنے خاندان کے افراد کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، تو کسی کو اپنا قرض اتارنے کی فکر لاحق ہوتی ہے، جس میں ان سب چھوٹے کاشتکاروں کو اچھی فصل کا انتظار ہوتا ہے،
मगर अफसोस के इस वक्त ज़रूरी बहरानी कैफियत है और देही गुर्बत में आए रोज इजाफा हो रहा है। यहाँ तक के छोटा काश्तकार ज़राअत को खैर बात कहने पर मजबूर है। इस गंभीर सूरत हाल पर मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर बीजों, खाद, बिजली और डीजल की कीमतों में मजीद कमी करने के इकदामात करे। अगर हुकूमत ज़राई अजनास की इमदादी कीमतों को नहीं बढ़ा सकती तो कम अज कम पैदावारी लागत को ही कम कर दे, ताकि किसान अपना खून पसीना बहाकर कम अज कम अपने खानदानों का पेट तो पाल सकें। वो अपने बच्चे नहीं तो बीमार होने पर अपने और अपने खानदान के अफराद की दवाई तो खरीद सकें। ज़राई शोबा इस वक्त एक बहरानी कैफियत का शिकार है, मगर अफसोस के ना तो पिछली हुकूमतों ने ज़राअत के शोबे की बेहतरी की तरफ कोई तवज्जो दी और ना मौजूदा हुकूमत संजीदगी से इस मामले को देख रही है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद भाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। रहीम यार खान में एक बार फिर टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ रकबे पर मुहित कपास की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि आम के बागात और गन्ने की फसल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फारूक। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में दर्जन भर से जायद मुख्तलिफ जगहों पर टिड्डी दल का शदीद तरीन हमला देखने में आया है। ये हमला इस कदर शदीद था कि टिड्डी दल ने कपास की नई काश्त की जाने वाली फसल को मुकम्मल तौर पर चट करके रख दिया है, जबकि इसके अलावा मुख्तलिफ सब्जियों, गन्ने और आम की फसल को भी टिड्डी दल ने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। रहीम यार खान के काश्तकारों का कहना है कि टिड्डी दल के इस हमले के बायस कपास का मुस्तकबिल बहुत ज्यादा तारीक हो गया है। हमने रहीम यार खान की इंतजामिया को तकरीबन 1.5 माह कबल ही टिड्डी दल और इसके अंडों के बारे में आगाह किया था, मगर इंतजामिया ने टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए कोई खातरखा इंतजामात नहीं किए, जिसका नतीजा आज ये निकला कि हमारी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गई हैं। जबकि दूसरी जानिब जिले इंतजामिया का कहना है कि टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर ऑपरेशन जारी है। टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों में मुसलसल स्प्रे किया जा रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम टिड्डी दल पर काबू पा लेंगे। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज़, रहीम यार खान। कनकोट में भी टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। सब्जियों की फसलों समेत कई बागात चट कर गई। किसानों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब्दुल बरोही रिपोर्ट कर रहे हैं। कंदकोट में एक बार फिर टिड्डी दिल ने फसलों पर हमला कर दिया। टिड्डी दिल के हजारों के तादाद में कंदकोट और गिरदोनवा इलाकों में पहुंच गया। टिड्डी दिल ने जिले भर के छोटे बड़े शहरों में खड़े सब्जी और फलों के फसलों को चट कर दिया। टिड्डी दिल के हमले से फसलों को महफूज बनाने के लिए जिले इंतजामिया ने किसी किस्म की कोई इंतजामात नहीं की गई, जबकि जिले इंतजामिया भी टिड्डी दिल के आगे बेबस दिखाई दे रही है। टिड्डी दिल के हमले से हजारों एकड़ खड़े फसलें मुतासिर होने का खदशा। फसलों के मुतासिर होने पर किसानों को शदीद नुकसान का सामना होगा। किसानों का कहना है कि टिड्डी दिल से हमले से हमारे लाखों रुपए का नुकसान होगा। ताहम इंतजामिया को चाहे कि टिड्डी दिल को रोकने की फौरन इकदामात करें। किसानों ने हुकूमत सिंध से टिड्डी दिल के खात्मे का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज़, कंदकोट। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के हमले नहीं रुक रहे। आम के बागात, गन्ने और कपास की फसलें टिड्डियां चट कर रही हैं। खून पसीने की मेहनत जाया होता देख किसान परेशान हैं। पंजाब भर में टिड्डी दल के हमले ना थम सके। दूसरे रोज भी मेलसी में टिड्डी दल की यलगार हुई। मौजे, बुलंदपुर, सरदारपुर, झंडेर के इलाकों में टिड्डी दल के शदीद हमले से मूंग, मकई, जवार, फलों के बागात, सब्जियों समेत दूसरी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। कल के दिन से जो है ना टिड्डी दल ने यहाँ मेरे इस इलाके में हमला किया है। काफी सारा उसने नुकसान किया है। नुकसान में जो है ना मूंगी की फसल है, ज्वार है, दरख्तों को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। हमने महकमा ज़राअत मेलसी को जो है ना कॉल भी की थी। वो लोग आए जरूर हैं, लेकिन जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करके वापस चले गए। कोई स्प्रे नहीं किया। मेरी वजीर आज़म पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब से अपील है कि इस इलाके को जो है ना टिड्डी दल से पाक किया जाए। किसान अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ अमल हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से इकदामात न किए जा सके, जिसकी वजह से किसानों को मजीद नुकसान का खदशा है। मुतासिरा काश्तकारों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। सच ने जगाया तो इंतजामिया को होश आया। टंडो अलायार में ज़राई जमीनों में टिड्डी दल के हमलों से होने वाले नुकसानात की खबर नशर होने के बाद इंतजामिया ने एक्शन ले लिया। इम्तियाज हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। जगाया तो इंतजामिया को होश आया।
सच न्यूज पर टंडोलियार में ज़रे ज़मीनों में टिड्डी दिल के हमलों से होने वाले नुकसानात की खबर नशर होने के बाद इंतजामिया ने एक्शन ले लिया। डिप्टी कमिश्नर टंडोलियार रशीद अहमद जरदारी ने सच न्यूज की खबर का फौरी नोटिस लेते हुए टिड्डी दिल के खात्मे के लिए तीनों तहसीलों तहसील झंडोमरी, टंडोलियार और चंबड़ के असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर समेत दीगर अफसरान की टीम तश्कील दी। टीम की जानिब से टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों में स्प्रे का अमल शुरू कर दिया गया है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए जारी स्प्रे के दौरान टिड्डियों की शामत आ गई। जिले इंतजामिया की जानिब से फिल फोर एक्शन लेने पर काश्तकारों और किसानों में खुशी की लहर छा गई। सलसल लॉकडाउन के बायस गरीब किसान पहले से ही फाका कशी पर मजबूर थे कि ऊपर से टिड्डी दिल ने उनकी जमीनों को नुकसान करना शुरू कर दिया था और टिड्डी दिल से मुतासरा इलाकों में स्प्रे का अमल शुरू कर दिया गया है। पहले मरहले में पाक सिंगा, ख्वाजा स्टाफ, झंडोमरी समेत दीगर इलाकों में स्प्रे कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सोनू खान चांडियो का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर मुतासरा इलाकों में स्प्रे कर रहे हैं। अगर कहीं भी टिड्डी दिल के हमले हों तो फौरी जिले इंतजामिया से राब्ता करें ताकि वहां फौरी स्प्रे किया जाए। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोलियार। जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। कमालिया में महकमा रेवेन्यू और महकमा फूड ने कार्रवाई करते हुए जखीरा की गई 400 बोरी गंदम कब्जे में ले ली। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कमालिया में महकमा रेवेन्यू स्पेशल ब्रांच और महकमा फूड ने मुश्तरका कार्रवाई की। मौजा कादिर बख्श रोड के करीब जखीरा की गई 400 बोरी गंदम कब्जे में ले ली गई और गोदामों को सील कर दिया गया, जबकि जखीरा अंदोजों पर भारी जुर्माने आयद किए गए। कब्जे में ली गई गंदम की बोरियां सरकारी गोदाम मुंतकिल की गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रहेगा। जखीरा अंदोजों और गंदम की स्मगलिंग करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पाकिस्तान भर से मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सच न्यूज की खबर पर एक्शन। टिड्डी दल के खात्मे के लिए कोई इकदाम न करने की खबर नशर होते ही महकमा ज़राअत की टीम्स मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे करने पहुंच गई। लोधरा से काजिम अब्बास रिपोर्ट करेंगे। जिला लोधरा की तीनों तहसीलों लोधरा, दुनियापुर तहसील, करोड़ पक्का के मुख्तलिफ मिजाफात में टिड्डी दल ने हमला किया। टिड्डी दल के हमले से हजारों एकड़ पर काश्त, कपास, मक्की, चारे समेत किसानों की देगर फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई और किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। किसान भाइयों के मुताबिक महकमा ज़राअत की जानिब से टिड्डी दल के खात्मे के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए, जिसकी खबर सच न्यूज ने नशर की। खबर नशर होते ही जिले इंतजामिया की हदायत पर महकमा ज़राअत और रेस्क्यू 1112 की टीमों ने टिड्डी दल को तलब करने के लिए अड्डा परमट, चक नंबर 98M, 99M, चक नंबर 100M और डिस्ट्रिक्ट जेल समेत जिला लोधरा के मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे किया। गुजरांवाला जिले इंतजामिया का गिराह फरोशों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। 51 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 लाख से ज्यादा जुर्माने आयद किए गए। गिराह फरोशों और चिकन महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ जिले इंतजामिया सख्त क्रैकडाउन कर रही है। जायद रेट वसूल करने वाले 28 गिराह फरोशों के खिलाफ मुतालिका थानों में मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 51 अफराद को हिरासत में लिया गया। जिला भर में 787 छापे मारे गए और आवाम की जेबों पर डाका डालने वालों को कानून की गिरफ्त में लाया गया। कार्रवाइयां गुजरांवाला की तमाम तहसील और शहरियों की शिकायत पर की गई। डिप्टी कमिश्नर्स का कहना है कि अवाम महंगे दामों और अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाए ताकि मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। RHC सनावा हॉस्पिटल में ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से एक्सरे मशीन 3 माह से बंद पड़ी, जिसकी वजह से मरीजों को बगैर एक्सरे करवाए वापस जाना पड़ता है। मुनीर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। RHC अस्पताल सिनामा में ट्रांसफार्मर अरसा 3 माह से खराब है। 2 फेज जल चुके हैं और 1 फेज काम कर रहा है, जिसकी वजह से एक्सरे मशीन बिल्कुल बंद पड़ी है। एक्सरे मशीन बंद होने की वजह से आने वाले मरीज शदीद मुश्किलात का सामना है। एक्सरे करवाने वाले मरीज बाहर महंगे दामों एक्सरे कराने पर मजबूर हैं। अस्पताल में गए हुए हैं, लेकिन एक्सरे करवाने के लिए तकरीबन 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं। वो हमारी बात भी नहीं सुन रहे, क्योंकि अब भी कर देते हैं एक्सरे, अब भी कर देते हैं। हमारे साथ बच्चे भी हैं, हम बाहर धूप में खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ एक्सरे मशीन ऑपरेटर का कहना है कि अब 3 माह तो असा जो दरखास्त दी हुई है, हाले बिजली का ट्रांसफार्मर ठीक नहीं किया, उनकी वजह वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है, टाइम काम वास्ते एक्सरे नहीं थे। MS अस्पताल डॉक्टर अल्लाह बख्श साहू का कहना है कि ये जो एक्सरे वाला प्रॉब्लम है, ये सिर्फ जो है ना वोल्टेज का इशू आ रहा है। सुबह सुबह भी वोल्टेज पूरी होती है और शाम को भी वोल्टेज पूरी होती है। एक्सरे उस वक्त होते रहते हैं। दोपहर के वक्त वोल्टेज जो है ना थोड़ी ड्रॉप हो जाती है,
तो इसलिए जो है ना ये थोड़ा इशू आ रहा है। RSC अस्पताल सिनामा में आए मरीजों का मुतालबा किया है कि अस्पताल का ट्रांसफार्मर तब्दील किया जाए ताकि दूर दराज से आए मरीज परेशानी से बच सकें। मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनामा। मियां शहबाज शरीफ यौम तकबीर की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। नहीं रोक सकेगा, उसकी जरूरत किस चीज की जरूरत है? इत्तेहाद, इत्तेफाक, नज़्म ज़ब्त और यकीन मौक़िफ़, इस यकीन के साथ कि हम उसको कर गुजरेंगे, कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, कितने भी अपना कठिन हमें मराइल हमें सामने आए, कितने भी सौनी जो रोड हैं उससे भी गुजरना पड़े, कांटों बड़े सफर से हम गुजरेंगे और जिसम लहू लुहान होगा, कोई फर्क पड़ता, लेकिन एक दिन आएगा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान दोबारा माशी तौर पर हम एक अजीम मुल्क बनेगा, क्योंकि माश के बगैर अब ये माश और दिफा ये जुड़े हुए हैं, दिफा और माश जुड़े हुए हैं। अगर दिफा अगर हमारा मजबूत है और माश कमजोर है तो वो कमजोरी है, अगर हमारा दिफा खुदा न खास्ता कमजोर और माश तो ये एक चोली दामन का साथ है, दे आर इंटरलिंक्ड, इंटरट्वाइंड। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा दिफा तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है हर लिहाज से, चाहे वो जौहरी ताकत हो, चाहे वो फौज पाकिस्तान की मजबूती हो। हमें अगर इंशाअल्लाह अपने माश को मजबूत कर लेंगे, इकोनॉमी को मजबूत कर लेंगे तो कोई हमारा बाल भी बेकार नहीं कर सकेगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल के इस शेर के ऊपर कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आइए आज हम मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जो हमने जो अचीव एक अजीम एक मार्का मारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ने मिलकर, उसका दिन हम मना रहे हैं। आइए हम मजीद वक्त ज़ाया न करें, आइए कि हमारे सामने चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, आइए हम पाम दस्तों गिरबा होने के बजाय उस दुश्मन के खतरे के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं जो हम सबको खुदा न खास्ता नाकाम देखने का आरज़ूमंद है और हम पर वार करने पर तुला बैठा है। आइए हम समझे कि मजबूत, मुत्तहिद और माशी कुव्वत का हामिल पाकिस्तान न सिर्फ खत्ते और पूरी दुनिया बल्कि आलम इस्लाम के लिए भी नागुज़ीर है और कोई चीज इस दुनिया में नामुमकिन नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट इज डिफिकल्ट बट नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव। तमन्ना आबरू की है अगर गुलज़ारे हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला हमेशा आबाद रखेगा और इन मराइल से, इन बरानों से हम निकलेंगे, ये वबा खत्म होगी और इंशाअल्लाह हम दोबारा अपना मकाम हासिल करेंगे। पाकिस्तान आइंदाबाद, कायद आजम जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिहाड़ी में गैस्ट्रो की वबा फूट पड़ी। दर्जनों मरीज DHQ हॉस्पिटल पहुंच गए। हसनैन अली रिपोर्ट करेंगे। बिहाड़ी और गिरदोनवा में गैस्ट्रो की वबा फूट पड़ी है और 24 घंटों में गैस्ट्रो से मुतासरा दर्जनों मरीज अस्पतालों में पहुंच चुके हैं। लेकिन कोरोना वायरस के बायस सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों में गैस्ट्रो से मुतासरा 47 से जायद मरीज DHQ अस्पताल में लाए गए हैं। इन मरीजों में ज्यादा तादाद बच्चों की शामिल है, लेकिन जिला के सबसे बड़े अस्पताल में भी सहूलियात का फुकदान है, जबकि इसके अलावा डॉक्टर्स भी कोरोना का बहाना करके मरीजों को चेक करने से साफ इनकार कर देते हैं। जिन मरीजों को दाखिल किया है इन्हें भी तमाम दवाइयात बाहर से महंगे दामों खरीदना पड़ रही हैं। कोरोना के बायस और OPDs बंद होने का बहाना कहकर अभी भी बड़ी तादाद में गैस्ट्रो से मुतासरा मरीजों को दाखिल करने की बजाय प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जा रहा है। वालिदैन अपने बीमार बच्चों को उठाए हुए इधर उधर धक्के खाने पर मजबूर हैं, जिस पर वालिदैन ने डिप्टी कमिश्नर कैबिनेट वकास रशीद और आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा किया है। कैमरामैन शफीक भट्टी के साथ सैयद हसनैन अली, सच न्यूज बिहार। तुलमजक की नहर पांजनत किनाल के करीब मियानी पुल की हिफाजती जंगला ताहाल तामीर नहीं हो सका, जिसके बायस हादसात मामूल बनते जा रहे हैं। फयाज अहमद रिपोर्ट करेंगे।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी नहर पंजनद कैनाल मियानी इच्छा के मकाम पर पुल नंबर 120 का हिफाजती जंगला या दीवार न है। हिफाजती जंगला न होने की वजह से पुल क्रॉस करने वालों पर खौफ तारी, क्या यह पुल क्रॉस करके खैर सलामती मंजिल मकसूद पर पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि पहले कई छोटे बड़े गिरकर जान से हाथ धो चुके हैं। पुल नंबर 120 को हेड अप का दर्जा भी हासिल है। एहलियान इलाका ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि हिफाजती जंगला लगवाया जाए ताकि आने जाने वाले अफराद बिला खौफ पुल क्रॉस कर सकें। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, टोलमजा। लियाकतपुर में तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स खोलने की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद ताजर बिरादरी ने इत्मीनान का इजहार किया। इमरान ज़िया तफसीलात बताएंगे। लियाकतपुर ईद की छुट्टियां खत्म होते ही ताजर बरादरी के लिए किसी खुशी से कम नहीं। हुकूमत पंजाब की जानिब से तमाम छोटी बड़ी मार्केटें खोलने की इजाजत दे दी है और ताजर बरादरी आज से अपनी दुकानें भी खोल ली हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से ताजर बरादरी को लॉकडाउन की पासदारी करने के सख्त अहकामात भी जारी कर दिए। तहसील लियाकतपुर इंतजामिया की तरफ से आज सुबह से ऐलान करके कहा है कि दुकानें सुबह 9 बजे से खोल दी जाए और शाम 5 बजे दुकानें बंद कर दी जाए और इंतजामिया ने ये भी वाजे कर दिया है कि जिस दुकानदार ने भी खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सिराज अहमद के साथ मोहम्मद इमरान ज़िया, सच न्यूज, लियाकतपुर। बाग के करीबी मोहल्ले को कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस सील तो कर दिया गया, लेकिन इलाका मकीन सहूलियात की अदम फरामी के बायस सराबा एहतजाज। आमिर अली रिपोर्ट करेंगे। चंद रोज कबल मोहल्ला बगरूल में 22 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की वजह से इस इलाके को सील कर दिया गया था। अशिया जरूरिया की फरामी मुअत्तल होने से इलाका मकीनों के मसाइल में इजाफा हो चुका है। बुजुर्गों और बच्चों को किसी भी बीमारी के बायस अस्पताल तक रसाई मुमकिन नहीं। अवाम इलाका का कहना है, हम रिलीफ नहीं मांग रहे, हमें मुजरिम समझ कर इज्जत नफ्स मजरू करने के बजाय अशिया खुर्दोनोश तक रसाई मुमकिन बनाई जाए। हमारा एक भाई बाजार गया, उससे शायद किसी ने मजाक में कुछ कहा है या सीरियसली कहा है, तो जो नहीं कहना चाहिए था जी कि आप क्यों आए हैं बाजार में, आप मुतासर हैं, आपको नहीं आना चाहिए। ज़रूरियात जो है वो हर इंसान की ज़रूरत रोज़मर्रा की होती है, खाने पीने की अशिया हो, कोई भी हो। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें रिलीफ दिया जाए, लेकिन ये है कि हमें इतना जो है मुतासर ना किया जाए, हमें इतना जो है जलील ना किया जाए कि हम कहीं कोई चीज़ लेने के लिए जाएँ तो हमें जो है वो चीज़ खरीदने भी ना दी जाए। गुज़श्ता 10 दिनों से ये मोहल्ला हर तरफ से सील किया गया है और हमें इस वक्त यहाँ पर पानी, साफ पीने का पानी और अशिया खुर्दोनोश की शदीद किल्लत का सामना था और बहुत से बच्चे और दिल के ब्लड प्रेशर के मरीज थे जिनको मुश्किलात पेश आ रही थी। और यहाँ पे गुज़श्ता एक हफ्ते तक हमारे पास कोई जिला इंतजामिया का बंदा नहीं आया। सोशल मीडिया पर इस तरह की नफरत अंगेजी अफसोसनाक है, जिसने माशरे में मसले की जंग को और वाजे कर दिया। आज हम मुतासर, कल दूसरा तीसरा, लेकिन आम लोगों को इसमें मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है, तो इसका इस तरीके से मुकाबला किया जाए, भाईचारा कायम रखा जाए, क्योंकि ये वक्त ही है, 2, 4, 6 दिन की बात है। हुकूमत वक्त और लोकल इंतजामिया मोहल्ला बगरूल और आइसोलेशन में मौजूद अफराद के मसाइल पर नोटिस लेते हुए तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरा टीम के हमरा आमिर अली सैयद, सच टीवी, बाग, आजाद कश्मीर। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। लिया के इलाके पीर जग्गी शरीफ में करोड़ों की मालियत के शीशम के दरख्त गायब हो चुके हैं। शाहिद खरल रिपोर्ट करेंगे। सरसाब दरख्त, दिलकश मनाजिर और लहलाते खेत हमेशा इंसानी जिंदगी के मुहाफिज और जामिन होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के विजन का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पीरजगी की वाहिद भागल नहर, जिस पर लगे करोड़ों रुपए मालियत के शीशम के दरख्त, टिम्बर माफिया और इसकी हिफाजत पर मामूर एहलकारों की मिली भगत से खत्म हो गए। कल तक इस नहर की खूबसूरती को दुबाला करने वाले दरख्त आज कहीं भी नजर नहीं आते। इनकी हिफाजत पर मामूर मुहाफिज ही इन दरख्तों को खत्म करने में हिस्सेदार नजर आते हैं। इमरान खान का जो क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम था वो शर्मिंदा ताबीर न होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि महकमा नहर के देख लें तमाम नहरों पे जो इतने कीमती लाखों के दरख्त थे वो महकमा नहर के अमले की और टम्बर माफिया की मिली भगत से वो टम्बर माफिया खा चुका है। महकमा नहर दे अफसर हैं, ये जितने दरख्त है नहीं था महकमा नहर दे
ये सारे लोगों नाल मिलजुल करके ये सारे वेच के ते खा गए। किसी भी मुल्क को कौम की तरक्की में जहां कौम के जवानों की मेहनत रंग लाती है, वहीं खूबसूरत और दिलकश और सरसब्ज़ मनाजिर से इंसानी जिंदगी पर मस्बत असरात मुरतब होते हैं। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी, पहाड़पुर, लिया। चुन्नी गोट शहर और उसके गिरदोनवा के इलाकों में बढ़ती महंगाई के साथ साथ मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से ही गायब हैं। मोहम्मद सिद्दीक रिपोर्ट करेंगे। गोट शहर और इसके गिरदनवा के इलाके में रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ ब्रायलर मुर्गी का गोश्त भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया। अब तो गरीब आदमी का अपने बच्चों को ब्रायलर मुर्गी का गोश्त खिलाने में भी पीछे रह गया। प्राइस कंट्रोल कमेटी भी बेबस दिखाई देने लगी। 500 रुपए कमाने वाला मजदूर अपने बच्चों के लिए मुर्गी का गोश्त भी नहीं ले सकता, क्योंकि मजदूर की दिहाड़ी भी 500 रुपए है और ब्रायलर मुर्गी का गोश्त भी 400 से 500 रुपए किलो हो गया है। लिहाजा आवाम का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कम किया जाए और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को भी एक्शन में लाया जाए ताकि महंगाई कंट्रोल हो सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज, चन्नीगढ़। चीनी माफिया, आटा माफिया, महंगाई माफिया के खिलाफ कार्रवाई न होने पर फैसलाबाद के शहरी फट पड़े। कहते हैं माफिया के खिलाफ कार्रवाई से हुकूमत गुरेजा है क्यों? अली गौहर की रिपोर्ट। चीनी माफिया के खिलाफ रिपोर्ट पब्लिक होने के बावजूद ताहाल चीनी माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर फैसलाबाद के शहरी फट पड़े हैं। कहते हैं हुकूमत को खौफ है कि चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बाद हुकूमत की बुनियादें हिल जाएंगी। चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई न करना आवाम का खून चूसने वालों की हौसला अफजाई करने के मुतरादिफ है। फैसलाबाद के शहरियों का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, आइए। लेकिन अब जब चीनी बहरान, आटा बहरान की रिपोर्ट अब सामने आई है तो अब हुकूमत भी कतरा रही है इनको गिरफ्तार करने में, और जो बड़े बड़े नाम हैं इनसे हुकूमत भी घबरा रही है। नैब वाले मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अगर हेलीकॉप्टर माफिया को इन्होंने गिरफ्तार करने की जरूरत की तो हुकूमत की बुनियादें हिल जाएंगी। ये हुकूमत 2 दिन नहीं चल सकती। इनको किसने गिरफ्तार करना है? इमरान खान साहब, आप खुद बजाते खुद कहते हो आप इसको गिरफ्तार करें, इनको रखवाएं अंदर, पता चले आपका भी आप वाकई तरीके से आपके पावरफुल वजीर आज़म है। अब हमें समझ आई है कि ये गवर्नमेंट तो उनसे भी बदतर आई है। 80 से 90 रुपए चीनी मिल रही है। इसी तरह आटा है, आटा हमें जब वो चोरों के दौर में थे तो 1200 से 1500 रुपए मिल रहा था, अभी 2000 से 2500 रुपए मिल रहा है मन। और ये हुकूमत बिल्कुल कोई एक्शन नहीं ले सकती। अगर एक्शन लेंगे तो वो हेलीकॉप्टर जो उड़ता फिरता था वो किधर जाएगा? हुकूमत बिल्कुल फेल हो गई है, ये कुछ नहीं कर सकती। तो फिलहाल जो बातें ही कर रही है कि हम ये चीनी माफिया को जो लोग इनसे इन्वॉल्व हैं, ये शामिल हैं, इनको हम पकड़ेंगे। ये तकरीबन 2 माह हो गए इस शोर को। काफ़ी ये जहांगीर तरीन साहब हैं या इनके साथी हैं जो भी, जिनको माना जाता है कि इनके बगैर पीटीआई नहीं चल सकती, उसको वे सपोर्ट कर रहे हैं। खुद पीटीआई वालों का जो सारा दारोमदार है वो जहांगीर तरीन के ऊपर है, इसलिए ये कार्रवाई करने से डर रहे हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो इनकी जमात नहीं चलेगी। फैसलाबाद के शहरियों ने हुकूमत से भरपूर मुतालबा किया है कि अवाम का खून चूसने वालों के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई अमल में लाई जाए। चीनी रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद माफिया पर हाथ न डालना हुकूमती कमजोरी को जाहिर करता है। कैमरामैन जुवेद भट्ट के साथ अली गौहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। दीपालपुर समेत तहसील भर में कसाबों की मनमानियों पर इंतजामिया हरकत में आ गई। कसाबों को भारी जुर्माने और मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ कसाब दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। अयूब खावर की रिपोर्ट। कसाबों की मनमानियां जारी। ईद के दिन ही से महंगाई और लॉकडाउन की सताई आवाम को कसाबों ने दोनों हाथों से लूटना शुरू किया हुआ है। दीपालपुर इसके मुजाफात में ब्रॉयलर गोश्त मनचाहे रेटों पर फरोख्त जारी। आवाम ने तंग आकर इंतजामिया को शिकायतों के अंबार लगा दिए। तहसील इंतजामिया हरकत में आ गई और नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले कसाबों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। सरकारी नरखों पर गोश्त न फरोख्त करने वाले कसाबों को भारी जुर्माने, जबकि कई कसाबों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए। कसाबों को जुर्माने और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते ही कसाबों ने एहतजाजन गोश्त मार्केटों और दुकानों को बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया। शहरियों को ब्रॉयलर गोश्त खरीदने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि असी सुबह से माशाल्लाह फिर रहे हैं जी, सारे दीपालपुर चक्कर ला चुके हैं। सन गोश्त मेरे मेहमान घर आ जा रहे हैं जी, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜੀ ਬਰਾਲਰ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ पहुंच तो दूर है जी। अगे कोरोना की वजह तो हालात खराब सन जी। खुदारा इन इंतजामियों को चाहिए कि कंट्रोल शेड वालों को और जो ब्रोकर हजरात है इनको गिरफ्तार किया जाए, ना कि हमें। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है इंतजामिया से। वजह एसी साहब आए ने तो उन्होंने 8-8 10-10 हज़ार रुपए जुर्माने किए ने। हालांकि गरीब आदमी ने इन्नी उन्होंने गुंजाइश नहीं,
जिस रेट ते गवर्नमेंट कहती है गोश्त वेचो उस रेट ते साडे कोल ना ही मुनासिब है ते ना ही साडे कोल बेचा जाता है। 190 रुपये सप्लाई है, 185 रुपये फार्म है। इन दे मुताबिक अगर गोश्त बेचने हैं तो कम से कम जरा ना 300 रुपये किलो गोश्त होवे तो फिर सानू 10 रुपये किलो गोश्त दे बचते हैं, वरना सानू नुकसान है। किसानों का यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात ना माने गए हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। सादिकाबाद में चिकन फरोशों की हड़ताल दूसरे रोज जारी है। चिकन फरोशों का कहना है कि कीमतें कम की जाएं। सादिकाबाद में मकामी इंतजामिया की जानिब से मुर्गी के गोश्त के दिए गए रेट 260 रुपए पर चिकन शॉप दुकानदार सरापा एहतजाज है। दुकानदारों का कहना है कि हमें फार्मर्स ने 316 रुपए खरीद कर 260 रुपए में कैसे फरोख्त कर दें। जब हम महंगे दामों पर चिकन खरीद रहे हैं तो मजबूरन हम भी महंगा ही फरोख्त करेंगे। इंतजामिया की जानिब से भारी जुर्माने करके हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है। पोल्ट्री एसोसिएशन मैना मानू की पॉलिसी पर कायम। डेरा गाजी खान में 3 दिन मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। अली मिरानी रिपोर्ट करेंगे। डेरा गाजी खान में पोल्ट्री एसोसिएशन ने 3 दिन मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। आज चिकन शॉप बंद, शहरी परेशान, हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों पर चिकन फरोख्त नहीं कर सकते। सदर पोल्ट्री एसोसिएशन ने कहा कि हमें 210 रुपए किलो जिंदा मुर्गी मिल रही है, जबकि जिले इंतजामिया हमसे 260 रुपए फी किलो में फरोख्त करने का कह रही है। आप गवर्नमेंट हमको वो जिंदा मुर्गी 120 रुपए किलो मुहैया करे, जिसका वजन 2 किलो सवा 2 किलो हो, तो हम 260 नहीं, हम 240 रुपए बेचेंगे। जबरदस्ती और ज्यादती की वजह से हमने हड़ताल की है। आज हमें मुर्गी का गोश्त जो है 320 रुपए घर हमें पड़ रहा है, और वो गवर्नमेंट नाजायज हमें जो फोर्स कर रही है कि 260 रुपए बेचें। या तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें जो सस्ती खरीदारी करके दें, गवर्नमेंट हमें माल प्रोवाइड करे, नहीं तो जो हड़ताल जो गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। 260 रुपए किलो में ये मुर्गी फरोख्त नहीं कर सकते। दुकानदारों पर नाजायज FIR की जा रही है और उन पर फी दुकानदार 15-15 हजार रुपया जुर्माने किए जा रहे हैं। हम इसलिए एहतजाजन दुकानें बंद कर रहे हैं और उस वक्त तक दुकानें नहीं खोलेंगे जब तक हमारे जायज मुतालबात मंजूर नहीं किए जाएंगे। कैमरामैन रिहान अली के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच TV, डेरा गाजी खान। महंगाई की लहर ने आवाम को परेशान कर रखा है। शहरी कहते हैं हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के ऐलानात झूठ पर मबनी हैं। इनके बारे में मैं यही कह सकता हूं कि ये चीजें स्टॉक कर लेते, बाद में फिर निकाल के महंगे रेटों पे बेचते प्रॉफिट की वजह से, तो इसकी वजह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन ले। वादे किए थे आवाम के साथ कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई कोई कम नहीं हुई, हर चीज अरूज पर है। गरीब आवाम जो है ना उसकी कमर तोड़ दिए महंगाई ने। महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है, क्योंकि हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे। माफिया के, महंगाई के जो माफिया है उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करे। जो यहाँ पर गरीब लोग हैं, बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, रेड़ों वाले हो, उस पर बहुत असर पड़ते हैं। हुकूमत के जो ओहदेदार हैं जो इस चीज़ के लिए जो मतलब है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी जो है एक्शन में नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो लोग इसके लिए जिन लोगों को मुतय्यन किया है, तो इस महंगाई के ख़त्म करने के लिए उनको सरगर्म होना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन यौम तकबीर। पाकिस्तान ने कामयाबी से एटमी तजर्बात के DGISPR ने कहा 28 मई को कम से कम जौहरी दिफाई सलाहियत हासिल की। 28 मई को पाकिस्तान ने खत्ते में ताकत के तवाजुन को बहाल किया। पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन यौम तकबीर। DGISPR ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान ने कामयाबी से एटमी तजर्बात किए, 28 मई को जौहरी दिफाई सलाहियत हासिल की और 28 मई को पाकिस्तान ने इस खित्ते में ताकत के तवाजुन को बहाल किया। सूरज आंखें दिखाने लगा, गर्मी की शिद्दत ने ठुल शहर को अपनी लपेट में ले लिया। गैर एलानिया लोड शेडिंग और गर्मी की शिद्दत से शहरी बिलबिला उठे। हामिद अली रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह गर्मी की शिद्दत ने ठुल शहर को बुरी तरह अपनी लपेट में ले लिया है, तो दूसरी जानिब महकमे सेप्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग और गर्मी की शिद्दत से शहरी बिलबिला उठे हैं। बिजली की बहुत बड़ी इधर लोड शेडिंग है, तकरीबन 18 से 17 घंटे की लोड शेडिंग है। बहुत जो है इससे कारोबार मुतासर हो रहा है, तकलीफ है लोगों को, और चल रही है भी बड़ी ट्रिपिंग कर रही है। कभी जो है एसियां जल जाती हैं, कभी स्टेबलाइजर जल जाते हैं, कभी
लाइटें जल जाती है, पंखे खराब हो जाते हैं, बहुत बड़ा मसला है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है इधर, कभी 15 घंटे कभी 18 घंटे लोड शेडिंग है। एक तो गर्मी, एक तो लाइट नहीं है। एक कोरोना वायरस की वजह से हम लोग पहले ही परेशान लगे हुए हैं। यहाँ पे इस मौसम में सेंटीग्रेड तकरीबन 48 से लेके 51 जो है ना तक होता है। उसके जो है ना बाद हमारे जो है ना ऊपर एक और अजाब ये है कि हमारे यहाँ लाइट तो होती ही जो है ना नहीं है। 18 घंटे लोड शेडिंग होती है, 17 घंटे लोड शेडिंग होती है। शहरियों ने हुक्काम बाला से अपील की है कि सिंध के गर्म तरीन शहर ठुल को बिजली की फराहमी यकीनी बनाकर शहरियों को इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ हामिद अली गोलो, सच न्यूज ठुल। मुल्क का गर्म तरीन इलाका सिब्बी शदीद गर्मी की लपेट में है, जिससे बचने के लिए लोगों ने ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। कामरान अहमद तफसीलात बताएंगे। कुदरती ठंडक से भरपूर, पुरलुत्फ और मजेदार ये है आलू बुखारे का शरबत, जिसे आपको सिर्फ जायका ही नहीं बल्कि गर्मी से लड़ने के लिए ताकत भी खूब मिलती है, जिसका एक गिलास पीते ही गर्मी हो जाती है छू मंतर। आलू बुखारे का शरबत पीने आया हूँ यहाँ। ये शरबत पीने से भले सारा दिन धूप में घूमो, गर्मी नहीं लगती है। इस आलू बुखारे के शरबत को तैयार करने के लिए इमली, आलू बुखारा, तुफ मलंगा और गुड़ वाले मीठे पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गर्मी के असरात को कम करने के लिए इंतहाई मुफीद माना जाता है। और आलू बुखारा, इमली का शरबत है, तुफ मलंगा है, गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा है। और अभी लॉकडाउन की वजह से कारोबार भी बहुत डाउन चल रहा है। गर्मी जब अपने जोबन पर आती है तो शहर में जगह जगह ठंडे मशरूबात के स्टॉल लगा दिए जाते हैं, जहां पर हर आम आदमी इसे पीकर गर्मी का तोड़ करते दिखाई देता है। कैमरा टीम के साथ कामरान अहमद, सच न्यूज सिब्बी। सिंध भर में गर्मी अपने उरूज पे पहुंच चुकी। कनकोट में शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए गन्ने के जूस की दुकानों का रुख कर लिया है। कनकोट के शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर जो भी पब्लिक आता है यहाँ पर खड़ा होता है, 10 मिनट के लिए वेट करता है, पर ये जूस पीते हैं। ये लोग गन्ने का जूस है, जबरदस्त जूस है। हम लोग यहाँ पर एंजॉय करता है, बहुत लोग यहाँ पर आते हैं ये जूस करने के लिए, जूस पीते हैं यहाँ पर। कंदकोट में भी आज गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने के बाद हमने गन्ने के जूस के स्टॉलों का रुख किया है गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए। सिंध भर में गर्मी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा हो गया है। डिस्ट्रिक्ट कश्मीर सिंध के सबसे ज़्यादा गर्म इलाका है, इसलिए यहाँ पर अभी भी जो है गर्मी जी जो शिद्दत है वो 37 सेंटीग्रेड चल रही है। इसलिए गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए हमने शहरियों ने ये गन्ने का जो जूस है उनका रुख कर लिया है, ताकि गर्मी की जो शिद्दत है वो कम हो सके। गर्मी के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर में मंगल तक बादल बरसेंगे। कराची वालों के लिए बारिश का मजीद इंतजार होगा। श्रीनगर समेत मकबूज आबादी के मुख्तलिफ मकामात पर आज बारिश होगी। सूरज से बरसती आग को ब्रेक लगाने आ गई बरसात। चारों सूबों में मंगल तक बादल बरसने की पेशगोई। तूफानी हवाएं भी चलेंगी, मोहतात रहें, अलर्ट भी जारी। मौसम का हाल सुनाने वालों ने नवीद सुनाई है कि मंगल तक बादल खूब बरसेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, जेलम, चकवाल, अटक, मियांवाली, सरगोदा और भक्कर में बारिश मुतवक्के है। खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में भी अब्र करम बरसेगा। जुम्मा और हफ्ते के दौरान कोयटा, योब, हरनाई, बारखान और डेरा बुगटी में भी तेज बारिश मुतवक्के है। पीर के रोज मीरपुर खास, बदीन और हैदराबाद में भी बाराने रहमत का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल रंग जमाएंगे। ताहम कराची वालों को बारिश का मजीद इंतजार करना पड़ेगा। मुजफ्फराबाद का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में किया जाता है। खूबसूरत पहाड़, लहरों की मौसीकी से भरपूर दरिया और खूबसूरत नज़ारे कुदरत के फयाजी का खुलासा है, जिनके शहर में गिरफ्तार दुनिया भर के सयाह उस जानिब खिंचे चले आते हैं। यूं तो कश्मीर का नाम ही जहन में खूबसूरती का एक अछूता तारुफ लेकर उभरता है, लेकिन दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में किया जाता है। खूबसूरत पहाड़, लहरों की मौसीकी से भरपूर दरिया और खूबसूरत नज़ारे कुदरत की फयाजी का खुलासा हैं, जिनके शहर में गिरफ्तार होकर दुनिया भर से सयाह इस जानिब खिंचे चले आते हैं। लेकिन कोरोना वायरस की आलमी वबा ने इस शहर की सयाहत को भी मुतासर किया है। ईद उल फितर के मौका पर मुल्क भर से सयाह आजाद कश्मीर का रुख करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की फैलती वबा की वजह से अब सियाहती सरगर्मियां मुमकिन नहीं। अवाम का कहना है कि हुकूमत वक्त को इस जानब भी तवज्जो देते हुए सियाहत के इस शोबे को भी SOP के तहत खोलने की इजाजत देनी चाहिए, जिसकी वजह से इस शोबे से जुड़े अफराद अपनी जिंदगी का पहिया दोबारा चला सके। हुकूमत से हम यही अपील करते हैं कि नो डाउट कि कोरोना बिल्कुल एक खतरनाक बीमारी है, खतरनाक वायरस है, इससे भी हमें लड़ना चाहिए।
हमारी जानें या लोगों की जानें हुकूमत के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, नो डाउट, बट उसके साथ साथ हुकूमत को कुछ ऐसा एक ऐसा हमें मतलब रास्ता देना चाहिए जिसकी वजह से जो गरीब आदमी, मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा दिहाड़ीदार है तो उसके लिए भी हुकूमत को कुछ ऐसा निज़ाम सोचना चाहिए कि उसके बाल बच्चे भी जो हैं वो पेट भर खाना खा सकें। महकमा सयाहत, महकमा ज़राअत और आज़ाद कश्मीर के दीगर महकमा जात करोड़ों रुपए का बजट रखने के बावजूद इस शहर में मौजूद चंद सियाहती पार्क की देखभाल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आते हैं। पार्क के इंतजामी अमूर के लिए ना ही अमला मौजूद है और ना ही पार्क की सफाई सुथराई के लिए मुनासिब इंतजाम, जिससे शहर में मौजूद इन खूबसूरती सियाहती मकामात की खूबसूरती भी गहना कर रह गई है। अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चाहे तो महकमा टूरिज्म के ताउन से आज़ाद कश्मीर में सियाहत को फरोग देकर अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर सकती है। कैमरामैन सिकंदर शाह के साथ सैयद नदीम शाह, सच न्यूज, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। फलों के बादशाह आम ने पंजाब में एंट्री दे दी। लालिया में जायके से भरपूर आम ठेलों और दुकानों पर सज गए। शकील अब्बास रिपोर्ट करेंगे। बादशाह सलामत आ गए, इंसानों के नहीं फलों के। जी हाँ, फलों के बादशाह आम ने पंजाब में एंट्री दे दी। लाली की मुख्तलिफ जगहों पर जायके से भरपूर आम ठेलों और दुकानों पर सज गए। शहरियों ने फलों के बादशाह आम का इस्तकबाल खरीद कर किया। आम के खरीदारों का कहना था कि आम के सीजन के इंतजार सबको होता है कि कब आम आए और हम इनको खाएं। ये तो लाजवाब तोहफा है। आम हमारे पास चल रहा है, बहुत ज्यादा किसान खा रहे हैं, आम बहुत शौक से खा रहे हैं। आम का जूस भी पीते हैं। आम की कई किस्म है, दुशहरी, लगड़ा, दुशहरी बहुत ज्यादा मिठास में पाया जाता है। आम को छोटे बड़े सब शौक से खाते हैं। आम की बहुत सी अक़साम है, मगर चौसा इनमें सब में अपनी मिसाल आप है। बेशक आम तमाम फलों का बादशाह है। कैमरामैन नईम कादरी के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज़, लालिया। दूसरों के चेहरों पर खुशियां बिखेरने वाले फनकारों के खुद के चेहरे मुरझाने लगे हैं। थिएटर बंद होने से स्टेज फनकारों को किन मुश्किलात का सामना है, रईस खुर्शीद से जानते हैं। रईस बताइएगा। पहले रह के बेड़े गर्क हो गए ने, किन्नी को देर सानू घर बाओगे। SOP ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ SOP ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ना करे हुकूमत। इलाकाई खबरनामे से अब तक के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच।